Good morning, sir. Good morning. ये तो बात नहीं कर रही है ना। ऑफ कर दिया वीडियो। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all of you. I am going to teach you computer. I am your Amit sir. Good morning, sir. क्या आप मुझे कंप्यूटर की बुक दे सकते Good morning, sir. हैं प्लीज? Good morning, sir. Okay, I will send you at the end of the meeting. I will send you a computer e-book, which is as well as your hard copy book. Means that is e-version book. I will send you. Don't worry. So now I am going to tell you e-book. Okay. So desktop. I have computer book class 6. Yes, sir. That is class 6 IT Planet. Yes, sir. Yes, Now sir. this one, my beat and byte. That is your book. Okay, sir. Okay, I am sharing my screen. I am going to share my screen. Okay, sir. Okay, ये कर जैसे चल रहा है। screen. I am going to share my screen, computer screen, that you can see the book. Okay, sir. That is your book IT Planet. Yes, sir. That is your book IT Planet. That is your computer book IT Planet class 6. Let's see. That is your book computer, and this is your chapters. From the fundamental of. And please don't make a noise. Sir, chapter name is Fundamentals of Computer. These are the chapters. Chapter first is fundamental of computer, then computer memory, more on MS Word, starting with QBasic, introduction to MS Excel, formatting worksheet in Excel, formula and function in MS Excel. Means 3 chapters are related to Microsoft Excel, then internet and search engine and introduction to email. Total 9 chapters are there. Clear? Yes, sir. 9 chapters are there. Yes, sir. फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इज वेरी इजी सब्जेक्ट एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय. आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कंप्यूटर पढ़ के. तो ये जो बुक मैं जो बता रहा हूँ आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको सभी को ग्रुप में भेज दूंगा. सो दोज हु डोंट हैव बुक कैन सी बुक फ्रॉम देयर ग्रुप आल्सो. So this is your book fundamental of computer. So let's move to the chapter fundamental of computer. ये Clear? फोटो भी Fundamental of computer. In this chapter what we have to do, we have to learn about computers and what is computer, benefit of computer and how does computer work. इसमें जाए ओ And input device, output device, storage device and processing devices. These are the topics which we have to study. Please don't make a large and don't make lines. Otherwise, I will disable the annotations. I will disable the annotations. I will disable the annotations. इसमें क्या पढ़ रही है? ठीक है. तो बेटा आप लोग प्लीज ऐसा ना करिए. एनोटेशन बार बार चलिए मैंने डिसेबल कर दिया एनोटेशन. अब आप एनोटेशन खींच भी नहीं पाएंगे. और अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं. मुझे आप सभी को म्यूट करना पड़ेगा. If you still talking, I have to mute all. No, sir.
Okay, मेरी साउंड students. So this is the chapter fundamental of computer. Any doubt? Anyone have any doubt before starting No, the chapter? sir. Anyone have any doubt? No, Okay. sir. No, sir. So No, the sir. about computer. First of all, about computer. The topic is about computer. So in this topic, we will see in today is how computer work as a revolution task. Means how it become an integral part of our life. Sir, I Clear? have a doubt. Sir, what is the meaning of fundamental? Yes. शक्ल Ask सूरत your थोड़ी doubt. लाइट जो आ रहा है देखो सर है ये श्योर है Sir, क्या ये सर Yes. fundamental? सर है ये Yes. हाँ ये सर What is the है meaning of fundamental? Beta, don't shout. Please. Only one will be asking at a time. एक बार में बेटा एक ही कोई पूछो, अदरवाइज मुझे आवाज क्लियर नहीं आएगी आपकी. Sir, what is the meaning of fundamental? Who is asking? Fundamental means basic information. Basic information जो छोटी छोटी जानकारियां होती है, that is called fundamental. Basic information. Clear? यार दो लगी दीदी इसमें क्या कर रही हैं Okay. Please don't make a noise. Sir, what is the meaning of integral? Integral means connected. Integral means connected. Means it is an integral part. Means connected to our life. कंप्यूटर क्या है? अभी हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है. हर चीज हम काम कहाँ करते हैं? कंप्यूटर पे करते हैं. We can say that computer has entered each and every walk of life, be it at home, at work or at school. कहीं भी अगर आप देखते हैं, computer is a essential part of our life. So every task is integrated with computer. Yeah, okay. Any other doubt? Sir, what is joystick? Sir, what is joystick? बोलो करो Joystick is a device which is used for game, which is used to play games. Joystick is a device which is used to play games. And basic joystick क्या है? It's an input device. क्या होता है? ये games में input के लिए यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं? ये फाइल्स नहीं जॉयस्टिक Sir, your voice is not coming. गेम में हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं. Sir, your voice is not coming. इसलिए नहीं आ रहा है बेटा कि कोई टीवी खोल के बैठा हुआ है. कोई टीवी खोल के बैठा हुआ है बेटा. बोलो उससे कि आप लोग अपने आप को म्यूट कर लिए और जब पूछना हो तभी अपने आप को अनम्यूट करिए. ओके, सब लोग प्लीज जिसको पूछना है केवल वही अनम्यूट करे. बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और जब आपको पूछना हो तब अपने आप को अनम्यूट करिए. हाँ पूछिए, कुछ पूछना था आपको. Sir, what is microphone? Microphone is a device through which you can listen or you can listen any sound, any video, any sound clip, or you can input any sound notes. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ. इट मीन्स इनपुट और आउटपुट के लिए हम माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं. Sir, what is the difference between hardware and software? Sir, what is the meaning of revolution? Sir, what is the meaning of evolution? Sir, what is the meaning of evolute? Sir, what is the difference? Sir, what is the between meaning of hardware and revolution? software? इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ. जब आप लोग की क्लास चल रही होती है, जब आप लोग की प्लीज 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 जब मैं सबको म्यूट करूंगा एक बार फिर से. म्यूट कर. Sorry, sir.
बेटा आप लोग बार बार जो है ना अपने बार बार अनम्यूट करके शोर करने लगते हैं, जिससे किसी को आवाज मेरी क्लियर जा नहीं रही है। और प्लीज जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ उस समय फोन कॉल मत करिए। कुछ लोग फोन कॉल करने लगते हैं तो इससे प्रॉब्लम होती है मुझे, ठीक है। ओके, अबाउट कंप्यूटर हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ? सो इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लियर? वी कैन से दैट कंप्यूटर हैज एंटर्ड ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। प्लीज बेटा आप लोग कॉल मत करिए। अगर आप लोग कॉल करेंगे तो फिर मैं आप लोग को पढ़ा कैसे पाऊंगा? इंडिविजुअल लोग कॉल करने लगते हैं लगातार इसके टाइम। क्या सर आएंगे ना, उनका यहाँ पर लिखा होगा गुड्डू को देखो। अच्छा अमित सर Sir, what is the meaning of evolution? Sir, what is the meaning of evolution? इवोल्यूशन मीन्स शुरुआत, स्टार्टिंग। क्लियर? Okay, sir. अभी मैं क्लास में अभी है नहीं राकेश, तो वहीं बैठते हैं। ओके, so students, everyone know what the means of evaluation? Evolution means starting. So computer at home, घर पे कैसे कंप्यूटर यूजफुल है? You can check your bank account, pay bills, transfer fund, buy or sell products, evaluate financial plans. ये सब क्या आप घर पे देख सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर पे क्या है? ओके, अब मेरी आवाज सुन रहे होंगे और आप लोग अब नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप लोग बार बार शोर करते थे, इसलिए मेरी आवाज आप तक नहीं जाती थी। मैंने सबको म्यूट कर दिया, अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। और जब मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तब मैं क्वेश्चन लेना होगा तो वापस मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपनी चांस का वेट करेंगे। तो घर पे कैसे कंप्यूटर यूजफुल है? आप घर पे बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट्स फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गूगल पे, फोन पे से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स का बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप OLX पे कोई भी सामान बेच सकते हैं, अमेजन से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो ये सब आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये ड्यू टू कंप्यूटर एंड देयर टेक्नोलॉजी वी कैन डू दिस टास्क एट होम। ग्रोसरी स्टोर पे क्या है? कंप्यूटर ट्रैक योर परचेज एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी यू ओन। ग्रोसरी स्टोर पे आप जो भी खरीदते हैं और पूरा रिकॉर्ड आपका ट्रैक किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और अमाउंट जितना आप खर्च करते हैं सबका रिकॉर्ड एक जगह होता है। स्कूल्स, कॉलेजेज और घर पे आप कंप्यूटर्स एजुकेशनल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट एंड डू रिसर्च ऑन देयर कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर लैब्स। तो असाइनमेंट्स कंप्लीट किए जाते हैं और एजुकेशनल पर्पज पे असाइनमेंट्स हो गया, कोई भी सर्च करना कोई टॉपिक पे, तो आप क्या करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर हैज बिकम द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। क्यों? यू कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच अ वीडियो और अ मूवी, रीड बुक्स और मैगजीन, compose a video, edit or save a photograph, plan a vacation and do more many things. तो कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं? आप इंटरटेनमेंट भी करते हैं। बहुत लोग कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं, आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फोटोग्राफ आप बना सकते हैं। सो दीज ऑल कैन डन ड्यू टू कंप्यूटर्स। People use computer as a source of communication. You can transmit voice, sound, video and graphics with today's technology. इसमें क्या है? हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ। इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स अ बी अ कंप्यूटर लिटरेट। तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेस होना है, यू नीड टू नो द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बीइंग कंप्यूटर लिटरेट मीन्स यू हैव द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड देयर यूजेस। कैसे आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं? सो दीज आर द डिवाइसेस व्हिच वी यूज कंप्यूटर्स। ओके, दीज आर द डिवाइसेस हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इनपुट डिवाइस। ये क्या है?
ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? इट्स अ इनपुट डिवाइस। वेब कैम है। ये क्या करता है? अगर आप किसी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपके वीडियोस को ये दूसरी जगह दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। एंड दैट इज स्मार्ट वॉच। दैट इज स्मार्ट वॉच। दैट इज स्मार्ट वॉच। दैट इज टैबलेट। दैट इज टैबलेट। दैट इज टैबलेट। क्या ये टैबलेट है? ये लैपटॉप। इट्स अ पेन ड्राइव। इट्स अ पेन ड्राइव। इट्स अ पेन ड्राइव। It's a projector. It's a projector. It's ATM. It's ATM. It's desktop, laptop and desktop. So computer और उसके यूसेज वेरियस पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द व्हाट इज कंप्यूटर। सो अब मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ और अब आप व्हाट इज कंप्यूटर डेफिनेशन आप बताएंगे। हेलो सर। What is Now computer? you can answer what is computer. What is computer? So one by one you will answer A computer. What is computer is computer? an electric machine that works Computer is an electronic machine instruction given by To the is an electronic machine that works under instructions given by you. Again, you all are making noise. Okay. मैं सबको चांस दे रहा हूँ तो सब लोग एक साथ बोलना शुरू कर देना, जिससे किसी की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, एक बार में एक ही लोग बोलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। वन बाय वन आप लोग बोलेंगे। सो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर आप लोग को मैं जब चांस दूंगा तब आप बोलेंगे। सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये कैसे काम करता है? जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये दैट टोटली वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। इट कैन एक्सेप्ट डेटा और क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। ये क्या करता है? डेटा एक्सेप्ट करता है। दैट मैनिपुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं प्रोसेस के, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एज अ आउटपुट। क्या करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और फाइनली दैट आउटपुट कैन बी सेव ऑन अ स्टोरेज एज अ स्टोरेज। मतलब बाद में फ्यूचर में के यूज के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अब सीधे सीधे आ जाते हैं डेफिनेशन पे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू। It can accept data as an input, manipulate the data according to specific rules as a process, and produce result output and save storage result for future use. Clear? ये है कंप्यूटर। गुड। कुछ लोग चैट में अपने आंसर को कर रहे हैं। मैं चैट भी देख रहा हूँ उन लोग का। गुड। तो come to the computer definition. Computer contain many electric, electronic and mechanical component. इसमें क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर डिजाइन बाय टू थिंग्स, वन इज हार्डवेयर एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेक्स योर कंप्यूटर एफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन कंप्यूटर प्रोसेस डेटा यूजिंग इंस्ट्रक्शन व्हिच आर द स्टेप्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं? इट प्रोसेस डेटा यूजिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये डेटा क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। एंड व्हिच आर द स्टेप्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। और ये बताते हैं कंप्यूटर को कैसे कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। कौन सा पोर्शन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बताता है। क्लियर? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कंप्यूटर कॉमन पर्पस इज रेफर्ड टू सॉफ्टवेयर। ओके। और इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं हम उन हार्डवेयर को, डिवाइसेस को, उसे
प्रोग्राम्ड करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर के थ्रू, यूजिंग सॉफ्टवेयर यू कैन कंप्लीट a variety of activities such as search for information, type a letter, prepare a budget, create a presentation or play a game. Clear? तो हम जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे कंप्यूटर पे होता है, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। क्लियर? तो एक चीज क्लियर बिल्कुल समझ लीजिए, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंड इट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू. It can accept data as an input, manipulate data according to specific rules, produce result output, and save storage the result for future use. And there are two components. One is hardware and another is software. Electronic components in computer process data using instruction, which are the steps that tell the computer how to perform a particular task. A collection of related instructions organized for a common purpose is referred to as software as or a program. So दो चीजें होती हैं, one is hardware and another is software. तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो हार्डवेयर में होते हैं: इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैकेनिकल कंपोनेंट. थ्री कंपोनेंट्स आर देयर इन अ हार्डवेयर फॉर कंप्यूटर. वन इज इलेक्ट्रिक, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्ड इज मैकेनिकल. थ्री कंपोनेंट्स आर देयर एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर. ओके, समवन आर स्टिल राइटिंग इन चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में भी कुछ लोग लिख रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. मेरी वॉइस नहीं आ रही है. कुछ लोग लिख रहे हैं सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर. कैसे क्लियर होगी बेटा जब सब लोग शोर करेंगे? इसीलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया. अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी. द टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर. कौन कौन से टर्म्स कंप्यूटर से रिलेटेड हैं? लेट्स सी. डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा. डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स which can include word, number, images or sound. Computer manipulate and process data to create information. Data क्या होता है? Anything which you enter into your computer, that is called data. आप जो भी अपने कंप्यूटर में एंट्री करते हैं वो क्या होता है? डेटा होता है. तो कीबोर्ड से क्या क्या एंट्री कर सकते हैं? टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं, टेक्स्ट की एंट्री कर सकते हैं, A to Z अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. आप माइक्रोफोन से अपना वॉइस इनपुट कर सकते हैं. क्लियर? तो वो क्या है? इमेज आप इनपुट कर सकते हैं. सो वर्ड, नंबर्स, इमेज एंड साउंड, दीज आर द डेटा, बिकॉज हम इसको इनपुट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में. सो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट. ये कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है. विच कैन इंक्लूड वर्ड, नंबर्स, इमेजेस और साउंड. कंप्यूटर मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन. क्या कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है. किस लिए करता है? इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए. इंफॉर्मेशन क्या होता है? यूजफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो डेटा हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. नाउ कम टू इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस ग्रुप ऑफ कमांड. इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई व्हाट मस्ट बी डन ऑन टू द डेटा. डेटा के साथ हमें करना क्या है ये कौन बताता है? इंस्ट्रक्शंस बताता है. इंस्ट्रक्शंस होता है कि हमें फर्स्ट पीरियड क्लास लेनी है, सेकंड पीरियड मैथ्स लेना है, थर्ड पीरियड साइंस लेना है. दैट इज इंस्ट्रक्शंस. उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है? हर प्रोसेस के लिए एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं. दैट इंस्ट्रक्शन टेल्स व्हाट टू डू ऑन विच डेटा. डेटा के साथ कैसे क्या करते हैं ये कैसे पता चलता है? दैट इज ओनली डन बाय इंस्ट्रक्शंस. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. प्रिंटर इक्वल टू 25, मॉनिटर इक्वल टू 60. दिस इज डेटा. दिस डेटा मस्ट बी एडेड टू गेट टोटल नंबर ऑफ दीज आउटपुट डिवाइस. अगर टोटल करना है प्रिंटर प्लस मॉनिटर अगर कर लेंगे ये टोटल क्या है? इट्स अ इंस्ट्रक्शन. दैट इज इंस्ट्रक्शन. मतलब दो वैल्यू हमारे पास है, दोनों को अगर हम कोई ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर लगा के जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस. A collection of such logically related instruction is called computer program. और ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस क्या बोले जाते हैं कंप्यूटर में? अगर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस अगर ऐसे आ जाएंगे तो कंप्यूटर में दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम्स. दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. नाउ कम टू प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. तो अभी मैंने शुरू में बताया था जो डेटा होता है, डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है. कैसे कन्वर्ट हो जाता है? कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है. और मैनिपुलेट कौन करेगा? इंस्ट्रक्शंस करते हैं. इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा. तो डेटा से इंफॉर्मेशन बन जाता है.
इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डेटा को इनपुट लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन. क्लियर? सो इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड डेटा. इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है. ये ऑर्गेनाइज होता है, मीनिंगफुल होता है, यूजफुल होता है. जबकि डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है. डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड while information is a processed data and organized, meaningful and useful. This is helpful to user in making decision. Information क्या है, helpful होता है किसी भी decision को लेने के लिए user. Now what is user? जो system पे काम करता है, computer पे काम करता है. The person who uses the computer is called user. The person who uses the computer is called user. All the physical and mechanical equipment attached together to make a computer system are called hardware. Hardware, what is hardware? जितने भी फिजिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, दैट सिस्टम्स आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. यू कैन सी और टच द हार्डवेयर. हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. क्लियर? ऑल द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स दैट अटैच टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, वो कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर. क्लियर? नाउ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी मैंने इंस्ट्रक्शन बताया था. इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि कैसे डेटा को हमें प्रोसेस करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कौन बताता है, दैट इज इंस्ट्रक्शंस बताता है. तो ऐसे ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. दैट ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस, दैट ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस, दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. ये कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कोई भी टास्क और क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है किसी भी जॉब टास्क को. ये सॉफ्टवेयर बताता है. मतलब हार्डवेयर को, हार्डवेयर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, दैट इज सॉफ्टवेयर. नाउ नेटवर्क. नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर. अगर एक से अधिक कंप्यूटर अगर हम जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. व्हाई वी यूज नेटवर्क? बिकॉज we want to share information from one computer to another computer. जब भी हम इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. नाउ इंटरनेट. द इंटरनेट इज अ वाइड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल. Someone are still writing headings. हो गया बेटा, मैंने देख लिया सभी को, सब लोग को पता है, सब लोग इन डेफिनेशन बता रहे हैं. वेरी गुड. सो इंटरनेट. इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है. क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, कोई भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. नाउ कम टू बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. क्या क्या बेनिफिट है. कंप्यूटर इज अ पावरफुल एंड यूजफुल डिवाइस विच वर्क वेरी फास्ट. इट ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज डिजिटल वर्ल्ड. ये क्या होता है, बहुत यूजफुल है. क्या क्या यूजफुल है, पहला स्पीड. कंप्यूटर अलाउ यू टू परफॉर्म मेनी टास्क वेरी फास्ट. बहुत फास्ट टास्क परफॉर्म करता है. इट कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. अगर मल्टीप्लाई करना हो 10 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है. सो स्पीड इसकी मायने रखती है. दैट इज द बेनिफिट. सेकेंड इज क्वालिटी. कंप्यूटर एनेबल यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट एंड ड्राइंग. कभी भी आपको प्रिंटिंग करना हो तो प्रिंटर से अगर प्रिंट करके निकालते हैं तो एज इट इज जैसे आपकी फोटोग्राफ्स होती है, एज इट इज फोटोग्राफ उसी हाई क्वालिटी का फोटोग्राफ आपको मिल जाता है. दैट इज ओनली ड्यू टू क्वालिटी. क्वालिटी मेंटेन होती है कंप्यूटर की. सेकेंड इज रिलायबिलिटी. अ कंप्यूटर इज रिलायबल एंड एक्यूरेट. अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स बाय इटसेल्फ. कंप्यूटर क्या होता है, रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है. रिलायबल क्यों होता है, क्योंकि ये कभी गलती ही नहीं करता और ये खुद से इसकी गलती नहीं होती है. अगर यूजर इसको गलत टास्क नहीं देता है तो ये कभी खुद गलत नहीं करेगा. स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं. और वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी मीन्स ये रिपीटेटिव जॉब एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है. अगर बार बार एक ही काम दिया जाए तो ये गुस्सा नहीं हो जाता है. एंड ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट मैनेज. जबकि अगर किसी ह्यूमन को दे दिया जाए कोई टास्क, बार बार एक ही टास्क दिया जाए, तो वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है. ओके.
ओके, व्हाट यू कैन डू विथ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ क्या क्या कर सकते हैं आप, मतलब कंप्यूटर अगर है तो क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन डू मोर मैनी थिंग्स क्या है, डॉक्यूमेंट, यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, MS वर्ड में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ओपन कर देंगे, टाइपिंग कर सकते हैं, वर्किंग विथ नंबर, कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, नंबर की हम एंट्री कर लेंगे और कैलकुलेशन कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, डिजाइनिंग, बिल्डिंग बनाओ, डिजाइन कर सकते हैं, कपड़े की डिजाइनिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। These are the things which you can do on computer. Okay, how does a computer work, कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो दिस इज द कंप्यूटर IPO cycle, that is IPO cycle. कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर डे 4 मेन जॉब, 4 इसके मेन जॉब्स है, कौन कौन से, इनपुट डेटा, प्रोसेस, डिस्प्ले आउटपुट एंड स्टोर। दीज आर द 4 मेन जॉब दैट कंप्यूटर परफॉर्म। पहले सबसे पहले इनपुट चाहिए 5 3 और ये प्लस सिंबल, ये क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर में 3 चीज चाहिए, 5 + 3 को हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ये क्या है, आउटपुट है, उसको स्टोर कर देंगे। अपडेट योर नॉलेज में भी दिया हुआ, कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम एज इट इज नॉट अ सिंगल मशीन बट अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिवाइसेज विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। ये क्या होता है, बहुत से कंप्यूटर होते हैं, बहुत सी मशीन है जो एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, और किसके लिए, कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा सके। पहली बार कंप्यूटर वर्ल्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1613 में सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड रिकॉर्ड किया गया था और 1613 में यूज किया गया था, एंड ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब अ ह्यूमन हु परफॉर्म कैलकुलेशन, और उस आदमी के लिए यूज करते थे जो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता था। इधर दिया हुआ है स्मार्ट वॉच के बारे में। अब ये है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर, IPO साइकिल के बारे में दिया हुआ है। इनपुट क्या होता है, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, क्लियर, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसर, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसर जो इनपुट डिवाइस मिलने के बाद उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को भेज देता है रिजल्ट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। CPU क्या है, प्रोसेस है। एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हमें 2 नंबर ऐड करना है 4 and 7, देन एंटर दीज नंबर एंड गिव इंस्ट्रक्शन। ये 2 नंबर अगर हमें सम करना तो इंस्ट्रक्शन देंगे प्लस सिंबल के साथ। कंप्यूटर विल प्रोसेस दिस एंड द रिजल्ट 11 एज इंफॉर्मेशन। तो ये 11 हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट के रूप में मिलेगा, और यही हमें आउटपुट मिल जाएगा, हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाएगा, और फाइनली हम उसे स्टोर कर सकते हैं। अब कम टू द इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट। तो बच्चों आज की क्लास में अब हमारे पास केवल 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो अब मैं आपको टाइम देता हूं ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें कुछ। Sir, ji, what is the meaning of Guru Shri? ना Hello, sir. Guru Shri. Sir, What is the Sir? meaning of word Can you sir, what is the meaning of flatbed scanner? Sir, ji, what is the meaning of Sir, what is the flatbed meaning scanner? flatbed scanner? Sir, what is बेटा the अभी जो बताया है, Scanner. जो बताया है उसमें what is the पूछो। meaning of barcode reader? Sir, what is the meaning of flatbed scanner? Sir, what is the meaning of flatbed? बेटा अभी मैंने जो बताया है उतना पूछिए, आगे आगे नहीं पूछे। अभी तो मैंने बताया ही नहीं है, फ्लैटेबल स्कैनर ये सब तो बताया नहीं है। अभी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस से शुरू करना। अभी जितना बताया उतना आप पूछ लीजिए। अब आप पूछ सकते हैं। Sir, what is the meaning of barcode reader? अभी मैंने बताया है ना, अभी मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया है वही पूछिए ना। जो मैंने पढ़ाया है बेटा, मैंने जो पढ़ाया है वही पूछना है। बार बार एक ही साथ सभी लोग पूछ रहे हैं, इसलिए बार बार मुझे आपको म्यूट करना पड़ रहा है।
कोई बात नहीं, ये क्लास का ये मैं बुक आपको भेज दूंगा ग्रुप में। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.